So we are ready to study about the path of projectile. Okay, so we are going to study how we can find the equation of path. So let's see path of projectile. Okay, and we are talking about the angular projection. Okay, तो एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए भी पढ़ेंगे, बट पहले इसको कंप्लीट करते हैं. दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. सो लेट्स सी व्हाई इट इज नोन एज द एंगुलर प्रोजेक्शन. सो सपोज दिस वन इज let me draw quite large. This one is y-axis, x-axis, origin, velocity vector. Okay, let this angle be theta. So the component along x-axis is ux, you can say, and along y-axis it is uy, right? This one is the highest point P. So our aim is to find out the equation of this path, or you can say the trajectory. For this purpose, first let us assume that this magnitude of vector u. So let u can be written as uxi plus uyj, right? But this vector can be written in form of this, where ux vector is equal to uxi and uy vector is equal to uyj. I and j are unit vector along x and y axis respectively, right? Now if this angle is theta, then the component of this u along x axis in magnitude, that is ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. We can write here since. Okay, since these things are here in this diagram, you can see this one is u, so its component along x axis is ux is equal to u cos theta, and its component along y axis uy is equal to u sin theta. So I hope you understand how it is written here. So this one is suppose equation number 1. Okay, now we are going to talk about the role of ux and uy. So what is role of ux in this motion? Now what is role of uy in this motion? So students, we know that the role of this ux is to give the horizontal distance to the projectile, and role of uy is to give height to this projectile. Okay, so देखिए जो ux है इसका रोल क्या है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाना, और uy का जो रोल है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाना. ये इस ux और uy का रोल है इस मोशन में. ठीक है, अगर ux की बात करें मैग्नीट्यूड में, नोन वैल्यू जो कि u इसका मैग्नीट्यूड नोन है और एंगल थीटा के फॉर्म में, तो ux की वैल्यू u cos थीटा होगी और uy की वैल्यू u sin थीटा होगी. तो इफ थीटा इज नोन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज नोन, you can find out the values of ux and uy, okay, by these relations. But our aim is to find out the equation of path of this projectile, right? So what is meaning of path? First we want to know what is meaning of path. क्या करें कि पाथ का इक्वेशन मिल जाए हमको, ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है. तो पाथ के लिए आप देख सकते हैं, जब कोई प्रोजेक्टाइल एक एक्स वाई प्लेन में ट्रेवल करता है, तो किसी भी पॉइंट पे इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू वेरिएबल्स, one along x direction and second one is along y direction, means we need two variables x and y. So now we need two variables here. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एक इक्वेशन फाइंड करना होगा जो x और y के फॉर्म में हो और जो इस पाथ के किसी भी पॉइंट पे
इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को डिस्क्राइब कर पाए, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे जानना होगा। तो देखते हैं कि हम क्या जान पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज हम लोग करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई projectile along x axis in time t। कितना होगा देखते हैं, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा टाइम t में। ओके, सो यू कैन यूज द फॉर्मूला x is equal to, that is distance is equal to speed into time। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, why we can write this equation, because along x axis there is no acceleration, so if there is no acceleration, so you can use the simple formula distance is equal to speed into time। Okay, because in all the equations of motion, if you put a is equal to 0, you will get this similar equation, x is equal to ux into t from the equation number 2। आप अगर सेकेंड इक्वेशन आप मोशन यूज करें और एक्सेलरेशन 0 करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू 0 लिखते हैं तो आप देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो जाती है। इट मीन्स ये हुआ कि जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसमें थ्रू आउट द मोशन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ पे सिंपल आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूले का यूज करके आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चाहे तो t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे x बाई यू एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। टाइम की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। t टाइम में ये x डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसको t के फॉर्म में x बाई यू कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो इनिशियल वेक्टर u है इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ux और uy की वैल्यूज क्या है उसको फाइंड आउट कर लिया वेक्टर के फॉर्म में और कंपोनेंट के फॉर्म में, यहाँ पे साइन और u के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अब x एक्सिस पे t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये प्रोजेक्टाइल, उसको नोट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पे इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्टाइल इतने ही टाइम में y एक्सिस पे कितना चलने वाला है। तो देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई प्रोजेक्टाइल in time along y axis। तो देखते हैं y एक्सिस पे ये t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सपोज y डिस्टेंस कवर करता है तो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे। क्योंकि y एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। क्योंकि y एक्सिस पे एक्सेलरेशन g के इक्वल है इसलिए एक्सेलरेशन की जगह पे g यूज करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज कर रहे हैं। तो फिर से सुनिए क्या कर रहे हैं हम, y एक्सिस पे चल रहा है इसलिए y लिख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। सेकेंड, क्योंकि हमें टाइम पता है और इनिशियल वेलोसिटी इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। ओके, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है इसलिए थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, और क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g के इक्वल है इसलिए यहाँ पे g लिख रहे हैं, और अपवर्ड चल रहा है बिगनिंग में तो यहाँ पे तो इसको माइनस ले रहे हैं। तो इतना आपने किया y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। बट इस इक्वेशन में यहाँ पे t आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास t है, अगर इस t की वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर दें तो आपके पास एक इक्वेशन होगा जो कि y और x के फॉर्म में होगा। तो आपके पास एक जो इक्वेशन आएगा
वो इसी पाथ का इक्वेशन है और आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ दिस पाथ। तो जो भी इक्वेशन आएगा हम बोल सकते हैं कि यही इक्वेशन इस ट्रेजेक्ट्री का है, इस पाथ का है, और उस इक्वेशन की हेल्प से आप इस पूरे पाथ के किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसकी वैल्यू इसको इरेज करते हैं और इस टी की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में यूज करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। ओके, सो लेट्स सी। तो अब इस वैल्यू को यूज करेंगे हम लोग। सो यूज बाय यूजिंग इक्वेशन 1 into 2, so we get y is equal to u, y की यहाँ पे आप लिख सकते हैं u sin थीटा, और t की यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u की यहाँ पे लिख सकते हैं t की यहाँ पे x by u cos थीटा, माइनस यहाँ देखिए 1/2 और g है यहाँ पे x by u cos थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। बहुत अच्छा। तो यहाँ देखिए u इज इक्वल टू, ये देखिए u कैंसिल और ये हो गया tan थीटा, तो ये हुआ tan थीटा x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं सॉरी माइनस g/2 u cos थीटा एंड इंटू एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में है ये है g/2u cos थीटा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो कर दिया तो बिगनिंग में हर बार तो उतना ही मानेंगे आप। जब एक बार इसको थ्रो कर दिया तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने ओ से कितने वेलोसिटी से थ्रो किया था तो आपको u उतना ही बताना होगा। इसका मतलब u जो है वो कांस्टेंट है, तो u की वैल्यू जब कांस्टेंट हो गई तो ये पूरे ब्रैकेट का है कांस्टेंट, तो इसको c इज इक्वल टू ले सकते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं लेट c इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं g/2u cos थीटा, 2u cos थीटा, और ये हो गया कांस्टेंट। तो अब आप इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको देखिए क्या लिखेंगे आप। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan थीटा माइनस cx स्क्वायर टाइप का, ठीक है। या फिर मत लिखिए, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं कुछ कांस्टेंट तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन भी बहुत ही सही है और ये इस पाथ का इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें देखिए ये ब्रैकेट कांस्टेंट है और ये वाला, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, यहाँ x है और यहाँ पे x की सेकेंड पावर है। तो इस टाइप की जितने भी इक्वेशंस होते हैं ये देखिए ध्यान से, ये इस टाइप का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। a की जगह पे tan थीटा है, b की जगह पे ये सब कुछ है जो ब्रैकेट में है, b/2u cos थीटा। तो ये इक्वेशन जो होता है एक पैराबोला को प्रेजेंट करता है, और इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका पाथ होता है पैराबोलिक, और उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस g/2u cos थीटा x स्क्वायर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप इस पार्टिकल के को इस पूरे पाथ के किसी भी पॉइंट पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसको डिराइव कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप फाइनली। सो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या मिला, फाइनली हमको मिलता है सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। तो यहाँ पे लिखेंगे सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। सो ये हमको मिल गया। ओके, तो ये हमको मिल गया रिजल्ट इसका कि ये जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस g/2u cos थीटा x स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप इस पाथ के किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। थीटा और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, इस u का मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा। ओके, तो ये हमारा हो गया पाथ से रिलेटेड डेरिवेशन। ओके, सो नोट इट डाउन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, इसमें क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, ऐसे करके पूछा जाता है। प्रूव दैट, या फिर बोला जाता है कि डिराइव फॉर्मूला फॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन
या फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रूव दैट डिराइव फार्मूला फॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो ऐसे करके पूछा जाता है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए क्या है, हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओके, तो यहाँ देखिए ये है डायग्राम। किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ओके, ये O है, ये है U, ये है UY, UX, राइट। ये है हाईएस्ट पॉइंट P, जहाँ पे कि आपको वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन की है वो तो ऐसे ही रहेगी, मतलब कि UX रहेगी, लेकिन UY यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो इस पॉइंट के लिए UY 0 होगा। ठीक है, UY नहीं बल्कि क्या 0 होगा, VY फाइनल वेलोसिटी। UY तो इधर है इस डायरेक्शन में, तो इस UY की डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी इस पॉइंट के लिए। ठीक है, यह पॉइंट P, सपोज कर लेते हैं कि हाइट इसकी h है यहाँ से, तो ये पॉइंट है सपोज A, तो AP इक्वल टू h हो गया। हमको पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि ये कितने टाइम तक एयर में रहेगा, यही हमको पता करना है। तो देखिए क्या होगा, जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया जाएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा, ये वाला कंपोनेंट, वो इसको हॉरिजॉन्टल ले जाएगा, क्योंकि इस पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये UX हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको ले जाता रहेगा, ले जाता रहेगा, ले जाता रहेगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये लगातार जाता रहेगा। बट यहाँ पे देखिए ये UY का क्या होगा, ये UY ऊपर जाएगा और नीचे इसके लग रहा है फोर्स। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा O से, पॉइंट O है सपोज, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है UY ऊपर की तरफ, लेकिन इस पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड जो कि mg है इसका वेट, या फिर इसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोल सकते हैं। अब इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती चली जाती है, और कुछ देर बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी जो होती है वो हो जाती है 0। तो 0 जब हो जाती है तो ये इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब ये वापस आएगा 0 होने के बाद, क्योंकि ग्राउंड पे तो आना ही है, लेकिन ये वापस यहीं पे नहीं गिरता, क्यों कि UX इस पे लगातार लग रहा है, UX उसको हॉरिजॉन्टली ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर जाके से फिर नीचे ही गिरना चाहता है, बट क्योंकि इसमें ये ऊपर सिर्फ नहीं जा सकता क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, तो ये ऐसे चलता है और उसके साथ ऐसे जाके नीचे गिर जाता है कहीं दूर, तो ऐसे चल के ऐसे गिर जाता है। तो इस पॉइंट पे जब इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, फिर ये वापस आता है यहाँ पे, तो जितना टाइम इसको O से P तक जाने में लगता है उतना ही टाइम इसको P से X तक जाने में भी लगेगा, क्योंकि जितने फोर्स के साथ ये जो mg है, जितने फोर्स के साथ इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, 0 से उतना ही एक्सेलरेशन के साथ इसको इंक्रीज भी करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ से फिर यहाँ तक उतने ही वेलोसिटी रेट से वो इंक्रीज हो जाती है। तो O से P तक जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको P से X तक आने में लग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होगा टाइम टेकन इन जर्नी O to P प्लस P to X, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग O to P की वैल्यू निकाल दें कि O to P जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो उसका ट्वाइस करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल वो कितने देर तक एयर में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे द टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। जब तक ये एयर में रहता है, जैसे ये स्ट्राइक करते जाता है रुक जाता है ये मोशन इसका। तो अब देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हम लोग O to P पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद
P2x के लिए मतलब O2x के लिए ट्वाइस कर देंगे इसका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या लिखेंगे, टाइम टेकन इन होल जर्नी। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये टाइम ऑफ फ्लाइट t है, तो इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल t, वेयर t इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम O to P, राइट। ओके, तो इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स, अब t की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, देखते हैं कि t की वैल्यू कितनी है। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी, जर्नी लिख सकते हैं, दैट मीन्स एट p Vy will be 0। ओके, मीन्स कहने का है कि वर्टिकल डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। देन बाय यूजिंग, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हम क्वेश्चन यूज करेंगे, Vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी, और यहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा। अगर हमको वी वाई पता है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 0 इज इक्वल टू, देखिए यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी लिख सकते हैं यहाँ से। तो अब अगर इसको लिखें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको मिलेगा यहाँ पे t इज इक्वल टू मिल जाएगा u साइन थीटा अपॉन u साइन थीटा बाई g मिलेगा। देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई g मिल गया, ठीक है। जब t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई g मिल गया, तो इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमको टोटल टाइम मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये टाइम है जबकि ये प्रोजेक्टाइल O से P पे पहुंच रहा है, और हमको क्या चाहिए, हमको टोटल टाइम चाहिए, मतलब कि इसी का हमको ट्वाइस चाहिए, ठीक है, इसी का ट्वाइस चाहिए। तो ट्वाइस t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी है। तो अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 ठीक। तो अब देखिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं इधर का पार्ट, आप नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब इस t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करेंगे और हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए इसको इरेज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए हेंस टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2 टाइम्स u साइन थीटा अपॉन g मिल गया। वाह कितना अच्छा रिजल्ट है, देखिए यही है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि ये जो भी प्रोजेक्टाइल है वो कितने टाइम तक एयर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू वेरी करेगी, यू की वैल्यू अगर अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, कई बार क्वेश्चन जरूरी है कि हर बार ये यू, कभी इसको 30 डिग्री पे फेंका गया होगा 10 मीटर पर सेकंड से, कभी 45 पे 30 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं, जैसे भी आएगा ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसको सबसे पहले तो इसको डिराइव करिए खुद से, ठीक है। डिराइव करने के बाद इस फॉर्मूले को याद रखिए और आप डायरेक्ट इसका यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो डिराइव कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलवेज ट्राई करिए कि डेरिवेशन आपको करना है। जब आप डेरिवेशन करना सीख जाते हैं तो फॉर्मूले आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए न्यूमेरिकल, ताकि जितनी बार आप फॉर्मूले का यूज करें उतना ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाए तो क्या होगा, देखिए t इज इक्वल टू 2u/g हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 होने वाला, ये वर्टिकल चला गया। तो जब ये वर्टिकल जाएगा तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, तो वर्टिकल जाने की कंडीशन में
ये हो जाएगा 2u/g, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अगर इसको इस डायरेक्शन में नहीं फेंका होता तो वर्टिकल जाने के लिए आप कैसे करते, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालते टाइम t, और फिर वापस आने का निकालते टाइम t, ठीक है। अगर वर्टिकल फेंका होता तो यहाँ से इस पॉइंट पे आपकी फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होगा, यहाँ पे सपोज u है, और ये वापस आता, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम आप फाइंड आउट कर सकते थे इक्वेशन यूज करके, जैसे कि vy = uy - gt फॉर्मूला यूज करते हैं आप। vy 0 हो जाता, क्योंकि साइन 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे तो सिर्फ u ही लिखते हैं आप, u sin थीटा u हो जाता माइनस gt, तो t कितना आता, t की वैल्यू आती है आपकी u/g। देखिए ये तो सिर्फ जाने का हुआ, अब आने का उतना ही टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाता, t = 2 टाइम्स स्मॉल t, और ये हो जाता 2u/g। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 फाइंड आउट करके वर्टिकल के लिए भी आप कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिए, डिराइव करिए, याद करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ठीक है, और आपको जरूर अच्छा लगेगा इसे कंप्लीट करने के बाद। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द formula for time of flight and what is time of flight. Okay, so time of flight means the time in which this projectile completes its journey from O to X. This is known as time of flight. So I hope you understand how you can derive this formula, and the result, must remember this result and try to solve more number of numerical problems. So there is no need to remember the formula, it will already remember for you. Okay, so thank you. अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इस टॉपिक के लिए बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे देखिए इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है, ये वाली पॉइंट है P। पॉइंट P की खास बात क्या है, पॉइंट P की सबसे खास बात है कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का 0, और इसके लिए हमें टाइम भी पता है कि कितने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचेगा, और इसकी हाइट जो h है कैपिटल, यही है मैक्सिमम हाइट। तो देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो पहले तो इस डायग्राम में AP = h, यही क्या है, मैक्स हाइट है। ओके, मैक्स हाइट है, हमको इसी h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। देखिए फर्स्ट Vy = uy - gt है। अब देखिए इस फॉर्मूले का हम कोई यूज कर नहीं सकते क्योंकि इसमें h नहीं आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं लिखने का। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम लोग पता करते हैं, क्या यूज करें। सेकेंड में देखें, सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, s = uy t - ½ gt स्क्वायर टाइप का है ये। और थर्ड क्या है, Vy² = uy² - gt टाइप का है, सॉरी -2gh टाइप का है ये, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। ये इक्वेशंस हैं जो कि है। अब देखिए जब हाइट अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन होता है तो यस को हम लोग रिप्लेस करते हैं h से, यहाँ पे, तो यहाँ पे h लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन तो इस कंडीशन के लिए यूजफुल नहीं है, तो इसको रहने ही देते हैं। इन दोनों में h आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ h है और यहाँ पे h है। बट अगर इस इक्वेशन के बारे में देखें तो इसमें कहीं भी v के बारे में नहीं है, इसमें टाइम के बारे में, और टाइम हमको ऐसे पता तो है कि कितने टाइम में ये वहाँ पे पहुँचेगा, तो इसके बारे में सोच सकते हैं कि इस इक्वेशन का यूज करें। या फिर थर्ड में आते हैं, इसमें देखें तो इसमें हमको Vy पता है कितना है, Uy भी पता है, और हमको h निकालना है। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है कंपैरेटिवली थर्ड। इसका मतलब हम थर्ड यूज करें तो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि h हमको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से भी मिलेगा, बट यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, और t की वैल्यू हमको लिखना होगा u sin θ/g, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा सिंपल करें और इस फॉर्म को यूज करें, मतलब इक्वेशन नंबर थर्ड यूज करें। तो थर्ड इक्वेशन अब यूज करने जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
देखिए ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग चीज़ों को इजीली करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ करते तो हमें मिलता है रिजल्ट, बट आप चाहते हैं कि आप चीज़ें इजी हो, थोड़ी जल्दी कर पाएँ, ठीक है, इसलिए थर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सोचना होगा, फर्स्ट यूज़ करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें हाइट तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2GH आएगा, कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पे हाइट को एच मान रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये है 0 एट पॉइंट P, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको फर्स्ट कंडीशन में आप ऐसे लिखिए ज़्यादा बेहतर है, ये आएगा u साइन थीटा होल स्क्वायर। u साइन थीटा क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में u आई की वैल्यू u साइन थीटा है, माइनस 2GH हो गया। यहाँ पे अगर इसको इधर ले आए तो ये आएगा 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम्स g। और ये देखिए ये कितना सही रिजल्ट आ गया आपका। यहाँ पे अगर आपको u पता हो, थीटा पता हो, तो आप बहुत इजीली हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से। अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू अगर 90 होती तो यू स्क्वायर बाई 2g हो जाता। थीटा की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप हाइट के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, कुछ भी बहुत खास नहीं करना था, हमें चूज करना था कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो थर्ड चूज किया। क्यों, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे 0 है और इनिशियल में पता था, एच फाइंड आउट करना बहुत आसान हो गया और हमको मिल गया फार्मूला मैक्सिमम हाइट का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले की हेल्प से एंगुलर प्रोजेक्शन में आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अगर आपको थीटा और यू पता है। ओके, तो क्वेश्चन जब आता है आपके सामने तो आप चेक करते हैं कि गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को और आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्राई करिए, डेरिवेशंस रिपीट करिए, बार बार करिए, और फॉर्मूले को याद करने से बेहतर कि आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, फार्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा और फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आप सीख पाएंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके।